of Psychology, and he has more than 100 papers of psychology. He has supervised so many research scholars, and still now he is dedicated himself in the worship of Goddess Saraswati and very much devoted in the area of psychology. Aradhana Shukla, on the behalf of workshop committee, heartily welcome to you, sir. I request you to be kind enough and deliver your lecture as desired. Thank you, sir. Please be with us. Thank Thank you you. very much, madam. Thank you. Thank you. हेलो, नमस्कार टू ईच एंड एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार हमारी तरफ से। हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? नमस्कार सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम। Well, really, I'm very much happy to be a part of your event as a faculty member, and I am very much obliged to the director of ICSSR, who is quite known to me, and I was hearing his lecture. He was speaking very relevant, sharing very relevant content regarding the research, especially in social sciences. The course director Madhu Nayal ji, members of the organizing committee, Upran ji, participants, Aradhana ji, the anchor, all the members of the organizing committee who have taken a lot of labor to get this program conducted for the welfare of the students and faculty also. Dear friends, I have been asked to speak something on research methodology. Here, everybody who is participating or organizing the event has a minimum understanding of research methodology. And covering the entire spectrum of research methodology in a very specified period of time really becomes a difficult job. But I will try to get it done as splendidly as possible. Friends, like other disciplines, our stream, the social science in general and psychology in particular, we are very much accustomed of using different types of research methodologies, keeping in view the problem, the content, the variables to be studied in the studies. So first of all, I would like to speak the younger students who are the future of psychology or social sciences. To start with on research methodology, first of all, we should have an idea. Research methodology is a research methodology is an approach which a researcher cannot avoid while dealing with this problem. तो रिसर्च जो है, the anchor and the organizer, may I ask you a question? What would be better for me, especially for the interest of the students, to speak in Hindi, to speak in English, or a mixed language? Hello? 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 Yes, sir, you are audible, sir. नहीं, मैं हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं या मिक्स लैंग्वेज बोलूं, ये मैं जानना चाहता था। Sir, I think mixed language will be suitable for all. हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बच्चे वहाँ ज्यादा होंगे।
So, my dear friends, the colleagues and students, when we talk of research methodology, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सोचना चाहिए कि रिसर्च मेथडोलॉजी फॉर व्हाट। हम जब कोई भी काम करते हैं लाइफ में, राइट फ्रॉम अवेकनिंग इन द मॉर्निंग टिल गोइंग टू द बेड इन द नाइट, तो हम जो भी काम करते हैं, एवरी काम, एवरी टास्क रिक्वायर सम प्रोसीजर, सम स्टेप। तो इन कॉमन मैन सेंस रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो क्या है? किसी भी काम को करने की पद्धति हो सकती है, किसी भी काम को करने का सिस्टम हो सकता है। अगर कॉमन सेंस के रूप में आप रिसर्च मेथडोलॉजी को इस रूप में लें, तो इसी चीज को जब हम जनरलाइज करेंगे बड़े लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे, रिसर्च लेवल पे, तो वहां पर यही चीज आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है कि अगर हमें कुछ करना है तो कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या व्यवस्थाएं लेनी होगी, और अगर हमें कोई कंटेंट हमारे मुताबिक मिल जाता है तो हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, उसको डिस्कस कैसे करेंगे, और दुनिया के सामने हम अपने काम के निष्कर्ष को कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो व्हाट इज नोन टू अस एंड व्हाट इज नॉन नोन टू अस, हमें जो ज्ञात है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो नहीं ज्ञात है, जब हम उसके बारे में कुछ काम करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई अध्ययन करना चाहते हैं, तो रियली वहां पर एक हमको निश्चित रिसर्च मेथडोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में कहा गया है कि रिसर्च मेथडोलॉजी जो है दैट इज एन अटेम्प्ट फॉर लुकिंग फॉर रियलिटी। तो जो ज्ञान है, विज्ञान है, या दुनिया का और भी, जीवन का और भी कोई क्षेत्र है जहां पर कि बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने अधूरे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों में हमें दुविधा हो सकती है, विरोधाभास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनका सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। ये वो सारी दशाएं हैं जहां पर कि हमें रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देके हम अपने टॉपिक पे आपको आएंगे कि रिसर्च मेथडोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के रूप में, और इस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, रोजमर्रा की लाइफ में भी हम रोज रिसर्च करते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे घर गांव में खेती में काम करने वाला कोई किसान हो, चाहे किसी काम के लिए निकलने वाला कोई मुसाफिर हो, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन रिसर्च थ्रू आउट द लाइफ। एक बच्चे को आप ले लीजिए, जब बच्चा अपनी राह पे चलता है तो अगर कुछ सामने कोई ड्रेन है, कोई नाली है, कोई गड्ढा है, कोई कुछ है, वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आगे वो गड्ढा है, जमीन डिप्रेस्ड है, अगर उसमें पैर रखा तो गिर जाएगा। तो ही सीक्स हेल्प फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मम्मी पापा क्या करें, तब मम्मी पापा उसको उठा करके इस पार से उस पार कराते हैं। तो वो बच्चा भी ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मेरे सामने ये जो गड्ढा है, हाउ टू क्रॉस दिस गड्ढा, इस गड्ढे को कैसे क्रॉस किया जाए। तो इसी तरह से जब भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं, वो किसी भी विषय में हो, तो हम उनके जब उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं से रिसर्च का जो अनुक्रम है वो प्रारंभ होता है। तो आज के हम इस लेक्चर में आपके साथ जो शेयर करेंगे वो ये कि रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं। तो एक सामान्य कॉमन मैन की दृष्टि से अगर आप देखिए तो हमें यह सोचना जरूर चाहिए कि वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या अपनी किसी उठाई गई समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे आपके हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, हमारा जो पुराना स्टाफ है वो तो जानता है, जो नए बच्चे हैं मैं उनको इस विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा पहले की कुछ बुक्स में जाएं जिनको हम टेक्स्ट बुक करके पढ़ते थे, पढ़ाते थे किसी टाइम में, आज उस तरह की किताबों का दौर मैं समझता हूँ कि लगभग प्रयोग, किताबें तो आ रही हैं लेकिन नॉट वेरी मच इन प्रैक्टिस।
तो जब हम ज्ञान को अर्जित करने की बात करते हैं तो एक प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि हम ज्ञान को कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो पहली बात इस दिशा में हम यह शेयर करना चाहते हैं कि एक थंब छाप अप्रोच होता है, अंगूठा छाप, मतलब हम जो कह दें वही सही है। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ टेनासिटी, कि हम जो जानते हैं वही सही है। जो आप जानते हो सही होगा कि नहीं होगा आप जानो, लेकिन हम जो जानते हैं वो सही है। तो ये मेथड ऑफ टेनासिटी सामान्य लाइफ में तो चल सकता है, लेकिन रिसर्च की दुनिया में नहीं चलेगा। कभी कभी दो बच्चों का आप झगड़ा होता है, आप देखिए एक बच्चा बोलता है हम जो करें वो ठीक है, और दूसरा कहता है हम जो करें वो ठीक है। इसको लेके क्लैश हो जाते हैं, और नोबडी नोज, दोनों में से कोई नहीं जानता कि व्हाट इज द रियलिटी। दूसरी बात है कि कभी कभी हम किसी समस्या के समाधान के लिए अपने से बड़ों की ओर ओरिएंटेशन करते हैं। स्टूडेंट जब फंसता है किसी प्रॉब्लम को लेके तो अपने टीचर के पास जाता है, अपने गार्जियन के पास जाता है। ये टीचर, ये गार्जियन या इससे और भी कोई डिफरेंट इसी कैडर का व्यक्ति, वो हमारे लिए एक अथॉरिटी जैसा होता है बच्चों। तो अथॉरिटी ने जो कह दिया दैट इज राइट। एक तरीका तो ये होता है ज्ञान को प्राप्त करने का। और दूसरा होता है मेथड ऑफ इंट्यूशन। मेथड ऑफ इंट्यूशन का मतलब यह है कि आप जो अज्यूम कर रहे हो मुमकिन है वो सही हो, लेकिन वो आप सही साबित कैसे करेंगे, दैट इज ए क्वेश्चन। और दूसरी बात, इस दृष्टि से, इस माध्यम से जो ज्ञान है, समस्या का जो समाधान है, स्टडी का जो अप्रोच है, जब हम वो अप्लाई करते हैं तो एक समस्या वहां और पैदा होती है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो लॉजिक है दैट इज करेक्ट। मान लीजिए दूसरा भी कहता है माई लॉजिक इज आल्सो करेक्ट, देन व्हाट विल हैपन। दोनों के अप्रोच दो हो जाएंगे, दोनों साथ दो व्यूज हो जाएंगे, और ऐसी दशा में हमारे सामने जो उठी समस्या थी, हमारे सामने ज्ञान का जो आयाम प्रश्न में या विचार में आया था, उसका समाधान तो नहीं होगा, हाँ विवाद की स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी। और इस तरह से आप देखिए कि ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञानार्जन के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हमारा सिलसिला कैसे एक माने व्यावहारिक जिंदगी से शुरू होता है और कैसे साइंस की तरफ जाता है। तो हम आते हैं साइंस की दुनिया में, और साइंस जब किसी चीज को लेती है तो साइंस ये कहती है कि आपका लॉजिक सही हो सकता है, आपका अप्रोच सही हो सकता है, लेकिन हम जब तक इसको सिद्ध नहीं कर लेंगे तब तक हम आपके लॉजिक को, आपके अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये साइंस कहती है। क्योंकि साइंस जो अप्रोच है, उसका जो अप्रोच वो ये है कि जो निष्कर्ष मिलेगा वो रिलायबल होगा, वो वैलिड होगा, और जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब उसको हम रेप्लिकेट करेंगे, उसको दोहराएंगे, तो हमें उसी जैसे परिणाम प्राप्त होंगे। ये साइंस कहती है। और साइंस इसके लिए करती क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि साइंस किसी भी मसले को, किसी भी समस्या का सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करती है। और ऊपर के जो तरीके जो हमने रेफर किए, आपने कार्लेंजर की किताब अगर पढ़ी होगी, मैगुगन की किताब पढ़ी होगी, डेमेटो की किताब पढ़ी होगी, ये मास्टरपीस बुक्स हैं मेथोडोलॉजी को, माने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच के लिए। और जो नई आई हैं उनको आप देखते ही होंगे, लेकिन हम ये पुरानों को भी रेफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप टॉनसन की किताब पढ़ लो माय डियर बच्चों, अगर आप मैगुगन की किताब पढ़ लो, आप एडवर्ड की किताब पढ़ लो, शायद पता नहीं आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नाम सुना है कि नहीं सुना है, और डेमेटो की किताब पढ़ लो, तो ये 3-4 बुक्स ऐसी हैं जो आपको मेथोडोलॉजी के कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो साइंस की जो दृष्टि होती है वो केंद्रित होती है लक्ष्य पर। लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या उपाय करने होंगे। और जब हम उपाय करेंगे तो हमें ये भी तय करना होगा कि जो घटना हम देख रहे हैं, जो व्यवहार हम देख रहे हैं, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे का जो रीजन है, क्या वही है अथवा उसके अलावा भी कुछ है। अब यहीं से साइंटिफिक स्टडी की शुरुआत हो जाती है।
एक छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, एक बच्चा रोया। अब आपने रोने के पहले का बैकग्राउंड देखा नहीं है, तो आप निष्कर्ष दे सकते हो उसको भूख लगी होगी। दूसरा दे सकता है किसी ने मार दिया होगा। तीसरा हो सकता है किसी ने डांट दिया होगा। चौथा हो सकता है किसी ने उसकी टॉफी छीन ली होगी। पांचवा हो सकता है मदर पेरेंट से डिप्राइवेशन हो गया है। ये सारे कारण उस बच्चे के रोने से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन रियल कारण क्या है ये तो तय करना बहुत कठिन है इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे। तो अब यहाँ पर हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग की बात शुरू होती है कि हम उसके पास तक जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसकी मानव स्थिति को समझेंगे, और जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब ये निष्कर्ष देंगे ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि इसके पेरेंट्स इसको छोड़ के कहीं दाहिने बाएं चले गए हैं। अब ये एक रियल रीजन हुआ, यानी पेरेंट्स का चला जाना, बच्चे का डिप्राइवेशन फील करना और फिर उसका रोना, ये तीनों फैक्टर आपस में रिलेटेड है। साइंस इसी पैमाने पर स्टडी करती है। गौर कीजिए कि साइंस को आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइंस भी एक लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक को वो सिद्ध कर सकती है। और जब हम सिद्ध करने की बात आते हैं तो हमें बच्चों ध्यान रखना चाहिए कि 4 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें जनरल इंट्रोडक्शन देने की बात कही गई है, इसलिए मैं आपको खास जो क्या उसे कहेंगे कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी जस्ट फ्यू सेकेंड्स पहले आई टॉक्ड अबाउट द कंट्रोल, कि जब बहुत सारी कोई एक घटना घटित हो रही है और हम जब उसके रीजन के बारे में समझते हैं तो कौन सा रीजन रियली जिम्मेदार है, उसके लिए उत्तरदायी है, यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट गारंटी इट, यू कैन नॉट आंसर इट विदाउट कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट या विदाउट कंडक्टिंग ए स्टडी। तो जब साइंस में बात आती है, रिसर्च की बात आती है, तो सबसे पहले जो हम जिन चीजों पर सबसे पहले बल देते हैं, हम आगे आपको चल के अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, कि हम कंट्रोल को जरूर अप्लाई करते हैं। इसमें से जितने व्यक्ति हमारी बात सुन रहे हैं वो हर हालत में कभी कभी चाय बनाए होंगे, कभी कभी खाना बनाए होंगे, कभी कभी गाड़ी भी चलाते होंगे। तो हर एस्पेक्ट जो बिहेवियर का है, कंट्रोल जरूरी है। आप चाय बना रहे हो, अगर आपने हीट कंट्रोल नहीं किया चाय उबल के गिर जाएगी नीचे। शुगर कंट्रोल नहीं किया बहुत मीठी हो जाएगी। ठीक से बॉयल नहीं किया चाय फीकी लगेगी। तो कहने का मतलब ये कि एक अच्छा आउटकम पाने के लिए आपको आउटकम के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो प्रोसेसिंग है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंट्रोल। दूसरी बात जो यह है कि जो स्टडी आप करना चाहते हो, आप अचानक स्टडी नहीं कर सकते। आपको पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, टीचर से बात करनी होगी, मित्रों से बात करनी होगी, जो आपका लाइब्रेरी स्टॉक है उसको देखना पड़ेगा, ऑनलाइन भी आप जा सकते हो। तो फर्स्ट तो ये देखो कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, और जिस एरिया में आप काम करना चाहते हो उस एरिया में भी स्पेसिफिक होइए कि किस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर या टॉपिक पर आप काम करना चाहते हो। तो जिस पर आप काम करना चाहते हो, ऐसे कभी कभी हम लोग एक बार एक इंटरव्यू में हम लोग गए थे, तो वह पीएचडी इंटरव्यू में गए थे। तो बच्चे से पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो उसने कहा सर नो प्रॉब्लम। अब बताओ, अगर बच्चा ऐसा बोलेगा तो हम क्या समझेंगे, अब वो रिसर्च का इंटरव्यू देने आया है। तो कहने का मतलब ये कि कंसेप्ट आप चुनो और उस कंसेप्ट के बारे में आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा वो डिराइल हो जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जूनियर प्राइमरी डिग्री कॉलेज या गांव के किसी पॉपुलेशन पर कोई एंजाइटी की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप में पहले क्लियर होना पड़ेगा कि एंजाइटी क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्यों उत्पन्न होती है, इसके डायमेंशन क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इतना ढंग से जब आप उसको समझ सकेंगे, तब आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंजाइटी आपके दिमाग में डेवलप हो सकेगी, और फिर आपकी बात आगे बढ़ सकेगी। फिर आप आइए उसके डेटा कलेक्शन पे। तो साइंस की मान्यता के अनुसार जो भी स्टडी आप करते हैं, जो भी निष्कर्ष आपको मिलता है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो उत्तराखंड में किया जाए तो जो परिणाम आ रहा है वही परिणाम उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, वही परिणाम चाइना, अमेरिका या फ्रांस में आना चाहिए। ये रेप्लिकेशन की बात होती है और साइंस इस बात को बल देती है।
आप ख्याल कीजिए, आपके देश में बनी वैक्सीन, कोवैक्सीन, कई देशों में यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो इंडियन पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिव थी या है, सॉरी है, तो इसका मतलब उसे दूसरे देश की पॉपुलेशन के लिए भी इफेक्टिव होना चाहिए। ये साइंस की एक मान्यता है। और तीसरी बात ये कि जब आपने स्टडी कर ली और रिजल्ट भी हासिल कर लिया, आप ये भी सोच गए कि हमारा जो रिजल्ट आया है इट कैन बी रिपीटेड एनीवेयर इन द कंट्री और वर्ल्ड, तो उसके बाद साइंस की जो अगली मान्यता है कि वो साइंस इज ओपन टू ऑल। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जो जानते हैं लेके घर में बैठे रहते थे, और इस तरह से नॉलेज क्या होता था, वो मर जाता था, आदमी के साथ वो चला जाता था। आज की दुनिया ऐसी नहीं है। आप जिस टॉपिक को समझते हो कि इस टॉपिक पर कोई काम नहीं हुआ, कि मेरी गारंटी है, आप ऑनलाइन जाइए, उस टॉपिक को गूगल पे डालिए और आप देखिए हजारों लाखों काम उस पर हो चुके हैं। ऐसे में आपको तलाशना बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस दिशा में जाएं। तो साइंस की इस दृष्टि से जो अगली मान्यता है वो ये कि जब हम कोई निष्कर्ष देंगे, जैसे आप लोग कोई इंटरव्यू लेते हैं, सर्वे स्टडी करते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी करते होंगे, या काउंसलिंग करते हैं, तो जो प्रॉब्लम हम रेस करते हैं उससे जो हम उसके बाद हमें जो डेटा मिलता है, जब उस डेटा की एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के पश्चात हम ये भी तय हमें करना पड़ेगा कि हमने जो हाइपोथेसिस डेवलप करी थी, क्या वो हाइपोथेसिस की पुष्टि अथवा अपुष्टि हो रही है। ये साइंस के इतने बेसिक, साइंटिफिक रिसर्च के इतने बेसिक एस्पेक्ट हैं, और जब तक इन चीजों को आप ठीक से कवर नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और आप रियलिटी का लाख कोशिश कर ले कि मैंने क्या उसे कहेंगे कि टू गेन द रियलिटी, नो यू कैन नॉट, यू विल फेल देयर। सो कंट्रोल जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, रेप्लिकेशन जरूरी है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। जब इन कदमों को ध्यान में रखते हुए आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हो, तो माना यह जाएगा कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रोसेस को यूज कर रहे हो। हम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और आपको वो कर दें कि जब भी आप किसी बिहेवियर को सेलेक्ट करते हो स्टडी के लिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप उस टॉपिक को, उस बिहेवियर को, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप समझ सकेंगे, उसको आप रेशनली डिफाइन कर सकेंगे, तभी जाकर के आप उसके बारे में अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क, साइकोलॉजिकल या साइको सोशल फ्रेमवर्क आप डेवलप कर सकेंगे। उस कंसेप्ट को लिया, उस कंसेप्ट के बैकग्राउंड में गए, फिर उस कंसेप्ट के डिफरेंट अप्रोचेस को समझने की कोशिश की, तब जाकर के हम इस स्टेज में आएंगे कि हमें आगे अब कैसे बढ़ना है। इसी के बाद हम हाइपोथेसिस के फॉर्मेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे चिंता है दिमाग में, अगर माइंड में चिंता है, हमारा एडजस्टमेंट खराब होगा। मान लीजिए हमने ये हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया, तो चिंता है तो हमारा समायोजन खराब होगा। बहुत सारे बच्चे इस पर स्टडी किए हैं। तो हम एक टेस्ट चिंता का लेंगे, एक टेस्ट समायोजन का लेंगे, दोनों बच्चों पर एडमिनिस्टर करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन देंगे कि हाँ, चिंता हमारे एडजस्टमेंट को एडवर्स रूप में प्रभावित करती है अथवा नहीं करती है। ये हमारा हाइपोथेसिस का जांच का वो विषय होगा। तो अगर हाँ, हमारी हाइपोथेसिस थी कि चिंता का समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए परिणाम भी ऐसा आया, तो जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। और क्यों ऐसा हो रहा है, इसको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर हमारा परिणाम हमारी हाइपोथेसिस के अनुरूप नहीं है, हम संतुष्ट हो सकते हैं, या देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल, जिनका नाम अभी हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। लेकिन अगर परिणाम अनुकूल है तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि जो परिणाम आपने पाया है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में है, अन्य चीजें नियंत्रित थी कि नहीं थी। मान लीजिए आपने जिस पॉपुलेशन एक्सक्यूज मी सर, आपका माइक शायद म्यूट हो गया है। नहीं आ रही आवाज। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।
सर शायद आपका माइक म्यूट हो गया है, आप उसे अनम्यूट कर सकते हैं। Yes. Okay, now audible? जी सर, Oh. जी सर, यू आर ऑडिबल, थैंक यू सर। It happened just incidentally. So there is very good role of incidental factor in research. हाँ, तो एक रिसर्च ये भी हो गई कि why I was not visible to you, not audible to you. तो my dear friends, इसके बाद जो चीज हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये चीजें तय हो जाने के बाद हमें ये तय करना पड़ेगा कि जो हमने प्रॉब्लम ली है, जो हमने टॉपिक लिया है, हम उस पर डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। बच्चों के सामने ये समस्या आती है, जैसे अभी सोम साहब बात कर रहे थे, कुछ और भी लोग बात कर रहे थे, प्रोफेसर नीरज जी बात कर रहे थे कि डेटा दो तरह का हम ले सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा क्वांटिटेटिव डेटा। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, आज की साइकोलॉजी के बारे में, जब हम लोग पढ़ते थे तो दोनों तरह अप्रोच चलता था। आज के जमाने में तो ज्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च ही हो रही है, वैसे कभी कभी क्वालिटेटिव रिसर्च भी आती है, खास करके क्लिनिकल साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में, इसमें अभी भी रिसर्च काफी अच्छी रिसर्च। सर फिर से माइक म्यूट हो चुका है अब। यहाँ से नहीं हो सकता ना, यहाँ से हम थोड़ी कुछ नहीं कर सकते। इट्स ओके नाउ? जी सर, जी सर, हो गया है सर, शायद दोबारा आपका माइक म्यूट हो गया है। Why it is happening? I am unable to understand. मतलब speaking on research methodology, but unable to solve my own problem. अरे wonderful. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल देखते हैं आगे। Let us proceed. तो अभी ठीक है? हेलो? जी सर, अभी ठीक है? जी सर, आवाज आ रही है। अभी भी ठीक है? जी सर, बिल्कुल। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे उसको हम करेंगे, हम क्वालिटेटिव डेटा लेंगे अथवा क्वांटिटेटिव डेटा लेंगे। दोनों के अपने एनालिसिस के तरीके हैं, दोनों का अपने एनालिसिस के सिस्टम है, और दोनों से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बगैर क्वांटिटेटिव डेटा नहीं ले सकते हैं तो हम स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सैंपल क्या है, और कैसे हम डेटा कलेक्शन करेंगे, इन तमाम चीजों पर यह निर्भर करता है कि हमें रिसर्च का तौर तरीका क्या फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी विल हैव टू यूज, वेदर हम सर्वे मेथड यूज करेंगे, वेदर हम लैब में एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करेंगे, अथवा हम क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर करेंगे, अथवा हम काउंसलिंग में प्री एंड पोस्ट डिजाइन को यूज करेंगे, क्या करेंगे, या मास लेवल पर हम डेटा कलेक्शन करेंगे, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद, हेलो हेलो हेलो, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद नाउ हम आप सभी बच्चों का, ये जो हमारे यंग टीचर्स हैं उनका भी एक संक्षेप में ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जैसे किसी भी काम में, आप साइकोलॉजी के व्यक्ति हैं, सोशियोलॉजी के व्यक्ति हैं, जैसे ग्रुप फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक सोशल साइकोलॉजी में भी आएगा और सोशियोलॉजी में आएगा। तो एवरी प्रोसेस इन्वॉल्व सम स्टेप्स, सो इज द केस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी आल्सो। Any research methodology, whether it is qualitative or quantitative, it involves some steps, and without going in the sequential order, you cannot realize the objectives of the research. तो my dear friends, my dear students, हमारा लेक्चर जो आगे प्रोसीड करेगा वो इसी आधार पे होगा कि सबसे पहले you will have to identify the problem, जिसकी बात मैंने शुरू में कही है। दिस आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आप सेलेक्ट कर रहे हो वो उसकी स्थिति क्या है, हमारे पास गैप नॉलेज जो हमारे पास उसके लिए उपलब्ध है, उस नॉलेज की स्थिति क्या है, क्या हमारे उस एरिया में काम करने की मार्जिन है कि नहीं मार्जिन है। तो बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, अभी तक क्या काम हो चुका है, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, उसके बीच में गैप कितना है, व्हाट इज द गैप इन नॉलेज।
तो गैप इन नॉलेज जो है उस पर जब आप गौर करोगे तभी आपको अपने मौजूदा किसी भी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाने के लिए मार्जिन मिलेगी, मौका मिलेगा, तब आप उसका राशनेल पैदा कर सकेंगे कि क्यों हम ये स्टडी करना चाहते हैं। अब उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स अपने तय कर लो, हाइपोथेसिस अपनी फ्रेम कर लो, मर्जी आपकी है किस तरह के हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत कंसाइज्ड है, हम इसे एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में नहीं जा सकते यहाँ पे। फिर स्टडी आप कैसे करोगे, कौन सी डिजाइन आप यूज करोगे, ये भी आपके जो अन्य वक्ता होंगे उस पर आपके प्रकाश डालेंगे। और डिसाइडिंग ऑन द सैंपल क्या होगा, कहाँ से होगा, किस पद्धति के आधार पर होगा, ये चीजें आपको तय करनी पड़ेंगी। आप में जो भी लोग सैंपलिंग, हमारे कई मित्र लोग हैं जो सैंपलिंग पर भी बात कर रहे हैं, आपसे करेंगे, तो दे विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट इज सैंपल, हाउ सैंपलिंग इज डन एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ सैंपलिंग, दीज एस्पेक्ट्स विल बी dealt by others. फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, और लास्ट चैप्टर जो हम लोग देते हैं वो है कंक्लूजन। और आज की रिसर्च में इतना आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखें कि आज की जो रिसर्च है उसमें अगर आपके कंक्लूजन के साथ साथ आपके फाइंडिंग्स की सोशल इंप्लीकेशन नहीं है, बिहेवियरल इंप्लीकेशन नहीं है, नेशनल इंप्लीकेशन नहीं है, तो आपकी रिसर्च को अच्छा नहीं माना जाएगा। पहले के जमाने की कोई भी थीसिस आप उठा के देखो तो इन सब चीजों पर एस्पेक्ट इतना बल नहीं होता था। आज स्थिति है कि चाहे वो ICSSR हो, चाहे वो UGC हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी हो, इन 3 चीजों पर कि मतलब आपने क्या किया, कैसे किया, क्या रिजल्ट आया, उठा के आपने रख दिया। नो, आप ये बताओ कि जो किया, जैसे किया, जो परिणाम आया, उसका सोशल इंप्लीकेशन क्या है। क्योंकि कोई भी स्टडी, कोई भी एक्ट अगर उसका सोशल इंप्लीकेशन नहीं है, इंडिविजुअल इंप्लीकेशन नहीं है, तो वो बेकार है और वो लाइब्रेरी की सेल्फ में रखे रखे सड़ जाएगा। और जिस दिन आपकी थीसिस में, आपके रिजल्ट में, आपके वर्क में सोशल इंप्लीकेशन हाईलाइटेड हो जाएंगे, आप समझिए एक नहीं सैकड़ों रीड्स आपके पास आएंगे, सैकड़ों लोग आपको व्यू करेंगे, सैकड़ों लोग आपको फॉलो करेंगे, ओ यू हैव डन ए गुड जॉब। लेकिन आप जानते हो नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है। आपकी स्टडी में कुछ न कुछ खामियां रही होंगी, जिनको हम लोग बोलते हैं सीमाएं, मैंने थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिमिटेशन, उन लिमिटेशंस को भी इंगित करना पड़ेगा। एंड देन क्योंकि आपने जो वर्क किया है दैट इज ए बिगिनिंग, दैट मे बी वन ऑफ द बिगिनिंग्स इन द पर्टिकुलर एरिया, दैट इज नॉट द एंड। You have added something new to the sequence that has already been offered by others. So आप ये बताओ कि आपने जो काम किया उसका इम्प्लीकेशन आपको बताना होगा, उसका आपको जो है लिमिटेशन बताना होगा, साथ ही साथ आपको ये भी आउटलाइन देनी पड़ेगी कि आपके रिसर्च, अपने जो रिसर्च आपने किया उसके आधार पे हम आगे के रिसर्चर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं कि अगर आगे कोई व्यक्ति आता है इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए तो वो क्या कर सकता है, व्हाट एल्स कैन बी डन। हमने एंजाइटी का छोटा सा उदाहरण उसमें दिया था कि एंजाइटी एंड एडजस्टमेंट, मान लो बहुत छोटा सा उदाहरण है, इस पर काफी कुछ इलाकों में बहुत काम हुआ था कुछ साल पहले। तो अब एंजाइटी और समायोजन को आपने ले लिया, आपका रिजल्ट आ गया, जो भी उसका इम्प्लीकेशन है वो सब आपने दे दिया। अब आप बताओ कि इस क्षेत्र में और कैसे काम किया जा सकता है, ये चीज आपको रेखांकित करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी थीसिस पर कमेंट्स नेगेटिव आएंगे कि यू हैव नॉट एडेड सजेशन टू योर थीसिस, प्लीज रिवाइज इट। तो ये नौबत ना आए माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अब रही बात रेफरेंस की, तो रेफरेंसिंग का पैटर्न थोड़ा कहीं कहीं भिन्न होता है, साइकोलॉजी तो APA स्टाइल में चलती है, लेकिन बाकी जो अपनी आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अगर आप अपनी रेफरेंसिंग करेंगे तो वो बेहतर होगा। अब आइए जो एक जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी, उन पर हम लोग कुछ देर चर्चा कर लेते हैं। अरे हेलो, आई हैव टाइम ना? हेलो टाइम है ना मेरे पास? यस सर, बिल्कुल आप अपना लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। अरे भाई मेहरबानी वाली भाषा मत बोलो, हाँ करना है कि नहीं करना ये बोलो। नहीं सर, बिल्कुल आपके पास टाइम है, हम लोगों के पास आपको सुनने के लिए जितना भी टाइम है।
अब वो हम लोगों का देखो, हम लोगों का अपना ये सेमिनार या लेक्चर में कर्सी होती है, पूछ लिया करो भाई कहीं हम टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम टाइम ज्यादा नहीं लिए हैं, नहीं क्योंकि सर। हमारी भी दृष्टि घड़ी पर है। तो जी माय डियर सर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि एवरी रिसर्च स्टार्ट्स विद ए प्रॉब्लम। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हर रिसर्च, प्रत्येक शोध किसी न किसी समस्या से प्रारंभ होता है। हमने आपसे कुछ किताबों का नाम लिया था, मैगुगन की बुक है, टांचेंट की बुक है, डेमेटो की बुक है, एडवर्ड की बुक है। ये बेसिक बुक्स है रिसर्च मेथड की, आज के पहले के टाइम की, और बहुत परफेक्ट है, आज भी रेलिवेंट है, आज भी रेलिवेंट है। और जितना बढ़िया कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन इन चीजों में मिल जाएगा, आज की जो थोड़ा सा वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड बुक्स आई हैं कि इंप्रेशन ज्यादा बनाओ, काम कमे रहे तो कोई बात नहीं है, उनमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सभी बच्चों से इस बात को कहूंगा कि अगर उनके लाइब्रेरी में, अगर उनके पास कोई किताबें हों, इनमें से वो अपने पास, उनको न भी जरूरत हो तो पढ़ कर रख लें, भविष्य में उनके बहुत काम आएंगी। जब वेरिएबल, कंट्रोल, डिजाइन इनकी बात करनी हो तो आप इन किताबों को आप गौर से पढ़ सकते हैं। तो जब रिसर्च की बात हम करते हैं तो सबसे पहले, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कि हम एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, हमें इस पर काम करना है। अब वो जो भी प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करते हैं कि उसके बारे में क्या होता है कि हम ये सोच के चलते हैं कि इस एरिया में काम करने की देयर इज ए मार्जिन। काम हुए हैं लेकिन अभी भी देयर इज एडिशनल स्कोप फॉर कंडक्टिंग न्यू रिसर्चेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो उस आधार पर आप अपने रिसर्च के टॉपिक को तय करिए। आपको ध्यान देना होगा कि जो मैं 3-4 बुक्स का नाम बार बार ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उसके अलावा हमारे पास बुक्स नहीं हो, बहुत बुक्स हैं हम लोगों के पास, लेकिन बेसिक नॉलेज अगर आपको लेना है रिसर्च के बारे में, तो इनमें से किसी किताब को मेरी राय मानिए, जरूर आप देखिएगा। और नहीं आपके पास होगी तो आपके टीचर्स के पास होगी, पक्का होगा, आप उनसे लेके देखिए, नहीं उसको फोटो स्टेट करवा लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप समस्या को सेलेक्ट करते हो? हमने वहां पर सर्वे की बात कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब हम थोड़ा कंसेप्चुअल होना चाहते हैं कि स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी आई विल लाइक टू कवर नाउ। तो पहली बात ये कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी प्रॉब्लम जब हम उसका इमीडिएट समाधान नहीं दे पाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। बहुत सीधा सा बात है, टांसेंट की बुक आप देखो जरा ध्यान से, या मैगुगन की बुक देखो ध्यान से। और ये प्रॉब्लम तब एग्जिस्ट करती है क्योंकि जब प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। और ज्ञान की दुनिया इतना बड़ा समंदर है कि वहां रिक्तता तो रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। इसलिए जो ये समंदर जैसा जो रिजर्वायर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का जो समंदर है, आप उसमें डुबकी लगाओ और ये देखो कि हमारे पास मार्जिन कहाँ है, हम अपनी नाव कहाँ उतारें और किधर से लेके अगले किनारे तक पहुंच जाएंगे, यानी समाधान तक पहुंच जाएंगे। तो जब आपके नॉलेज में कोई कमी होगी, आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर देना मुमकिन नहीं है, या जैसा मैंने अभी इससे पहले एक बात रेफर भी कर चुका हूं कि अगर आपके पास नॉलेज तो है लेकिन परस्पर विरोधी नॉलेज है, या नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज को आप एक्सप्लेन करने की स्थिति में नहीं है, इन दशाओं में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन, कोई भी चीज आपके लिए समस्या का रूप धारण करती है और फिर यहीं से आपके रिसर्च की शुरुआत होती है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि एवरी रिसर्च स्टार्ट्स विथ ए प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम कैसे तय होगी ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको जिस एरिया में काम करना है, आपको सोशल में जाना है, ऑर्गेनाइजेशनल में जाना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में जाना है, हेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, किस एरिया में आपको जाना है, पहले उस एरिया की बहुत सारी चीज़ों को पढ़िए, कुछ किताबों को पढ़िए, कुछ जर्नल्स को पढ़िए और ये देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो जब दुनिया कहाँ जा रही है इस दृष्टि से मैटर्स को आप स्टडी करना चाहेंगे तो फिर उसी में से आपको वो ज्ञान की रोशनी मिलेगी और आपको नई चीज उसी में से मिलेगी। फिर आप अपने टीचर से उसको कंसल्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप ये देख लेंगे कि हमने इस प्रॉब्लम पे हमें काम करने हैं, तो इस दुनिया में इतना काम हो चुका है और कहाँ गैप नॉलेज में कहाँ गैप है, इसको जब आप रेखांकित कर लेंगे
तब आप अपनी प्रेजेंट स्टडी के बारे में बहुत कन्विंसिंगली बोल सकेंगे कि व्हाई आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस स्टडी या व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ माय स्टडी। इस स्टेज में आप आ सकेंगे। अदरवाइज यही होगा कि आप प्रपोजल लेके जाएंगे और बोर्ड ऑफ आरडीसी जो है उसे रिजेक्ट कर देगा। वो कहेगा वाह। कभी कभी ऐसी भी सिनाप्सिस आती हैं कि आप 2020 में सिनाप्सिस को रिव्यू कर रहे हो और 67 के बाद 80 के बाद उसमें कोई रिसर्च नहीं है, तो इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो बातें कल तक ज्ञात नहीं थी वो जरूरी नहीं है कि आज भी ज्ञात ना हो। अब आप देखो कि आज उस एरिया में कौन चीज ज्ञात नहीं है, उसको पकड़ो, उस दिशा में आप बढ़ो, फिर आप अपने प्रॉब्लम के लिए अपना डिसाइड करो हमें इस एरिया में काम करना है। क्योंकि जब तक बैकग्राउंड आपका क्लियर नहीं होगा जिस एरिया में आप जा रहे हो काम करने के लिए, तब तक आप मौजूदा मानसिक स्थिति आपकी क्लियर नहीं होगी, और जब तक मौजूदा मानसिक स्थिति नहीं क्लियर होगी तब तक आप अपनी स्टडी को आप वांछित शेप नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। और जब ये सब आप कर लिए तब आप तय करिए कि रियली आप क्या करना चाहते हो। तो जब आप रिसर्च करते हो तो हर रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि आप प्रॉब्लम का समाधान चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान के लिए रिसर्च मेथड ये कहती है कि आपको सॉलिड मेथड का यूज करना होगा, साइंटिफिक मेथड यूज करना होगा, और आपके टॉपिक से संबंधित एरिया में जो चीजें अभी ज्ञात नहीं हैं उन्हें हमें बाहर लाना होगा, उन्हें हमें रोशनी में लाना होगा, प्रकाश में लाना होगा, ताकि उस पर अपेक्षित प्रकाश पड़ सके। प्लस ये देखना होगा कि एक घटना अगर घट रही है और दूसरी उसके परिणाम स्वरूप में आ रही है, तो स्पेशली साइकोलॉजी वाले तो इसको स्टिमुलस रिस्पांस या जो भी बोलते हैं, काज इफेक्ट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, हर जगह इसके लिए टर्म है। चाहे आप सोशियोलॉजी में जाओ, होम साइंस में आप जाओ, साइकोलॉजी में जाओ, ज्योग्राफी में जाओ, इकोनॉमिक्स में जाओ, हर जगह। जैसे मान लो महंगाई बढ़ रही है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड महंगाई, ये इस तरह के प्रश्न हर डिसिप्लिन में आते हैं, सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं आते हैं। और एक रिसर्चर की दृष्टि से आपको इन सभी मुद्दों पर गौर करना होगा, तभी आप एक बेहतर टॉपिक चुन पाएंगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर हो चुकेंगे। कभी कभी बच्चे टॉपिक तो चुन लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि इनसे तुम्हें मिलने वाला क्या है बेटा, तो बच्चे देखी मम खामोश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो वो इस पे अपने ऑब्जेक्टिव को भी वो बिल्कुल चाहे 10 आदमी बैठे हो सामने, चाहे 50 आदमी बैठे सामने हो, वो उसको शेयर कर लेंगे, उसको एक्सप्रेस कर लेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी रिसर्च स्कॉलर को शुरू में सिनॉप्सिस बनाने में हेल्प आप मत करिए, अन्ना बच्चों को हेल्प लेनी चाहिए। बच्चे पहले पढ़ें, 4-6 महीना साल माल पढ़ें, उस जिस एरिया में जाना चाहते हैं उस एरिया में किए गए कामों की समीक्षा करें, थीसिस देखें, रिसर्च पेपर देखें, बुक्स देखें, लोगों से बात करें, अपने कलीग से बात करें। फिर वो एक प्रपोजल के साथ आपको लेकर आए, तब उनसे पूछिए कि अच्छा ठीक है तुम्हारा टॉपिक चलो हम मान लेते हैं, इससे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, व्हाट शैल बी योर ऑब्जेक्टिव, फिर वो क्लियर कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उसने कहीं से नकल कर लिया, उसने कहीं किसी ने उसको वो दे दिया, क्या बोलते हैं, ईमेला दे दिया, डिक्टेशन दे दिया, तो इससे क्या होगा, रिसर्च का जो पर्पज है वो डिफीट कर जाएगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव तय कर लीजिए और हाइपोथेसिस बना लीजिए। हाइपोथेसिस बनाना मस्ट है। आप अगर ये कहते हैं कि हीट पाएगा तो पानी उबलेगा, दिस इज ए हाइपोथेसिस, तो अब पानी उबलेगा कि नहीं उबलेगा ये तो आपको तय करना पड़ेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसी तरह से साइकोलॉजी हो अथवा अन्य कोई डिसिप्लिन, हर जगह हम लोग हाइपोथेसिस की बात करते हैं। और हाइपोथेसिस बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि हमें हाइपोथेसिस से आगे बढ़ने का वो मिलता है, क्या बोलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है। तो हाइपोथेसिस जो है दैट इज मस्ट फॉर एनी रिसर्च, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में जाना है। तो जब आप डायरेक्शन तय कर लेंगे तब आप उसी दिशा में जाएंगे, और उस दिशा में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, व्हाट शैल बी योर रिसोर्सेज, आपके संसाधन क्या होंगे, ये चीज आप तभी तय कर पाएंगे जब आप हाइपोथेसिस बना लेंगे। और हाइपोथेसिस बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं वो आपके टॉपिक के रेलिवेंट होनी चाहिए। और हाइपोथेसिस आप कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन मस्ट है, उसके बगैर आपकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ेगी।
देन माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हाइपोथेसिस आप बनाते हो तो इसका ध्यान रखना कि आपका हाइपोथेसिस जो है उससे किसी चीज का संकेत मिलना चाहिए कि ऐसा करने पर ऐसा होगा। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंट कंडीशन। यदि ऐसा किया गया तो ऐसा होगा, यदि ऐसा किया गया तो दिस इज द एंटीसीडेंट कंडीशन, तो ऐसा होगा दिस इज द कॉन्सिक्वेंट कंडीशन। तो हाइपोथेसिस इसी तरह के रिलेशनशिप को व्यक्त करती है और हम प्रश्न ये उठता है कि हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कैसे। तो जब आप लिटरेचर को पढ़ लेंगे, 2-4 पेपर पढ़ लेंगे, उस पर कुछ कंसेप्ट उस पर आप पढ़ लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये अमुक व्यक्ति, अमुक रिसर्चर क्या बोल रहा था, अमुक रिसर्चर क्या बोल रहा था इसके बारे में, इस वेरिएबल उस वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर आप ये कह दो कि हम किसी को थप्पड़ मारेंगे वो बच्चा नहीं रोएगा, तो इस तरह की हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए, ये मूर्खता सिद्ध होगा। क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मौजूदा जो ज्ञान है, भंडार है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमको हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहिए। फिर हमें आगे तभी हमें जो है उस दिशा में आगे सफलता की संभावना बढ़ेगी। फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स कि आप रिसर्च की कौन सी डिजाइन यूज करोगे। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस पर काफी डिटेल से बात करी है, हम उसको संकेत के रूप में सिर्फ ला रहे हैं कि आप क्वांटिटेटिव मेथड यूज करोगे या क्वालिटेटिव मेथड यूज करोगे। लेकिन जो भी डिजाइन आप यूज करते हो वो एक किस्म से फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रिसर्च होता है। और रिसर्च डिजाइन का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने में रिसर्च डिजाइन के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रिसर्च डिजाइन को मास्टर प्लान ऑफ द स्टडी कहा जाता है, इसलिए रिसर्च डिजाइन जो है वो बहुत समझ बूझ के बनानी चाहिए कि आपका वेरिएबल कैसा है, यानी आपका कंटेंट कैसा है, सैंपल कैसा होगा, किस एरिया में आप जाओगे, ये सारी चीजें पहले से आपको तय करनी पड़ेंगी। और आप डेटा कैसे एनालाइज करोगे, ये सारी चीजें जब तय करते हैं तो इसी से हमारा मतलब है कि आप कैसे रिसर्च की डायरेक्शन में आप प्रोसीड करोगे। तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करो या क्वांटिटेटिव रिसर्च करो। अगर क्वांटिटेटिव आप कर रहे हो मान लो, तो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड भी फॉलो कर सकते हो, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड भी फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा जो अन्य तरीके हैं आजकल, जैसे आप देखिए कि कोई एक पेपर ऐसा आपको मिल सकता है अपनी एरिया में काम करते समय, जब आप रिव्यू में जाएंगे, किसी ने सैकड़ों स्टडीज को एक पेपर में समाहित किया है, इसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं। और ऐसे पेपर बड़े काम के होते हैं क्योंकि इनमें एक साथ बहुत सारे मैटर मिल जाते हैं और आपको भी इंट्यूशन मिलता है कि हम इस पेपर के आधार, जो मैटर इसमें समाहित किया गया है, जो इंक्लूड किया गया है, हम इसके आधार पे अपनी प्रॉब्लम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव के बाद आप आ सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में भी आ सकते हैं। बहुत से डिसिप्लिन में क्वालिटेटिव रिसर्च की बात ज़्यादा चलती है, जैसे हिस्ट्री की बात ले लो, आप केस स्टडीज ले लो, एथनोग्राफिक ले लो, फेनोमेनोलॉजिकल ले लो, तो ये भी विकल्प हमारे पास क्वालिटेटिव है और इनसे भी बहुत अच्छे रिसर्च हमें परिणाम मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रहा था डिजाइन की, हमने एंजाइटी की बात करी, समायोजन की बात किया, या हीट की बात करी, और पानी का उबलने की बात किया, बच्चे को डांटना, उसका रोना, ये उदाहरण मैंने दिया। तो अगर इन सारे उदाहरणों पर आप ध्यान दीजिए, या इसी तरह की अन्य घटनाएं जो जीवन में कभी कभी घटित होती हैं उन पर आप ध्यान दीजिए, तो प्रश्न ये उठेगा आपके सामने कि इनको हम क्या नाम दें, इनको नाम क्या दिया जाए। हर रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं, घटना चक्र होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जिनके बारे में हमें स्टडी करनी होती है। तो जब हमें स्टडी करनी होती है तो हमें यह तय करना पड़ेगा हम किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं काजल वेरिएबल के रूप में और किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल के रूप में। तो काजल वेरिएबल एंड कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स होते हैं, या इन्हीं को हम एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज की भाषा में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जो किसी घटना के उत्पन्न होने का कारण होगा, उसको हम काज भी बोल सकते हैं, स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। हम इस पर आगे काफी चर्चा करेंगे, और वेरिएबल्स और भी कई हो सकते हैं, क्योंकि मेरा एक लेक्चर अभी वेरिएबल पर अलग से है, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, आगे हम बढ़ेंगे।
और जो भी वेरिएबल हैं आपके किसी भी स्टडी में, नो स्टडी कैन बी कंडक्टेड विदाउट वेरिएबल्स, तो हमने कंट्रोल की बात शुरू में की है, हमें कंट्रोल पर भी ध्यान देना होगा। और कंट्रोल में क्या करना पड़ता है कि जिस चीज का असर हम, जिस चीज का इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं, हम उसके अलावा अन्य किसी भी वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में या स्टडी कंडीशन में ऑपरेट नहीं होने देंगे, यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के बारे में अलग से चर्चा की जाएगी, इसलिए हम इनको यहाँ पर संदर्भित करके छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम जो शेड्यूल आपका देख रहे थे उसमें सैंपल पर भी लेक्चर्स लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि जब तक सैंपल नहीं क्लियर होगा तब तक आपकी स्टडी कैसे आगे बढ़ेगी, दिस इज ए प्रॉब्लम। तो सैंपल क्या होता है ये आपको जानना होगा, यानी आपको जो डेटा कलेक्शन करना है, जैसे बच्चों में चिंता और समायोजन का अध्ययन आपको करना है, तो फिर आपको बच्चे लेने पड़ेंगे। अब बच्चों की एज आप तय करोगे, एडोलसेंट्स के तक अथवा उसके नीचे, ये सैंपल हुआ। या आपको पता करना है कि गांव के लोगों में और शहर के लोगों में अगर तुलना की जाए तो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, तो ये सैंपल एक गांव वाला होगा, एक शहर वाला होगा। जिस तरह से आपको सैंपल आपकी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने ये बात को दोहराया है कि सैंपल अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो पैरामीट्रिक, नॉन रिप्रेजेंटेटिव है तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए स्टैट के ये दोनों जो तरीके हैं दोनों को हमें समझना होगा। तो अगर हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और अगर नहीं सैंपल है, अगर ऐसा सैंपल नहीं है तो हमें फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें कौन सा स्टैट यूज करना होगा। लेकिन प्रयास ये किया जाना चाहिए कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम जो निष्कर्ष देंगे उस निष्कर्ष की जो रिलायबिलिटी है वो डाउटफुल हो जाएगी। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि हमारा जो सैंपल है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सैंपल होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव हो भी सकता है और रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है तो हमें कौन सा स्टैट यूज करना पड़ेगा, हम सैंपल कहाँ से लेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे सैंपल, कौन सी सैंपलिंग का तरीका यूज करेंगे, ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जितने कंपोनेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सभी कंपोनेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई कम अथवा ज्यादा नहीं है। तो सैंपल की बात हो गई, सैंपल पर कई लेक्चर लगे हैं, आगे चल के उन पर भी हम लोग सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड वी शैल इनहांस आवर नॉलेज। अब हम लोग आते हैं डेटा कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा पे। तो ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स कि डेटा कलेक्शन जो है करने में हमें अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर पायलट स्टडी भी छोटे लेवल पर करके हम बड़े लेवल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब डेटा कलेक्शन हम लोग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। और फिर अगर है, मान लो रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो हम कब करेंगे, कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें 3 ग्रुप पर स्टडी करनी है, हमें देखना है कि प्रैक्टिस का इफेक्ट लर्निंग पर, मेमोरी पर कैसा पड़ता है। तो मान लीजिए हमने एक ग्रुप को स्टडी दे दिया मॉर्निंग में, दूसरे को दोपहर में, तीसरे को शाम में, तो डेटा तो हमारा कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो निष्कर्ष आएगा वो साइंटिफिक नहीं होगा, क्योंकि तीनों समूहों के लिए जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो एक जैसी नहीं रखी गई। इसलिए जो आपका रिजल्ट आएगा वो चैलेंज हो जाएगा। जनरली हम लोग प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं, मतलब जो डायरेक्टली हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी रिसर्चेस हर फील्ड में ऐसी आ रही हैं जहां पर कि प्राइमरी डेटा के बजाय सेकेंडरी डेटा भी हम यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो हम यूज करते हैं तो उसके हमारे स्रोत क्या होंगे ये तय करना पड़ेगा, और उनकी हम एनालिसिस कैसे करेंगे ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। डेटा एनालिसिस करने में आपकी जो डिजाइन है, आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके जो ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स हैं, कंट्रोल है, इन सारी चीजों को देखते हुए फिर आप डेटा एनालिसिस की बात करेंगे। और कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, या इन्फरेंशियल में भी कौन सी यूज करेंगे, पैरामीट्रिक यूज करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक यूज करेंगे, ये सब कुछ आपके डिजाइन पर यूज करेगा। अगर आपने एक देखा है कि मान लीजिए आपका रिजल्ट है
कि हमें एक बच्चे को हमने चांस दिया किसी टारगेट को हिट करने के लिए 10 बार मौका दिया उसे, वो 6 बार उसका जो अटेम्प्ट था 6 बार सही गया और 4 बार सही नहीं गया, फेल गया, निशाना चूक गया। तो अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो वास्तव में निशानची है अथवा नहीं है। हाउ यू विल डिसाइड। यहाँ पर न मीन काम करेगा, न एसडी काम करेगा, न टी काम करेगा। आपको यहाँ पे काम करेगा काई स्क्वायर। एवरीबडी नोज, आप सभी जानते होंगे। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा डिजाइन यूज किए हैं, उसी डिजाइन के अनुसार हमें अपना वो तय करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं कि आपका डेटा मेथड। और लास्ट में हम आएंगे कंक्लूजन पर माय डियर स्टूडेंट्स। ये कंक्लूजन में टोटल स्टडी को समरी करते हुए हम आएंगे अपने निचोड़ पे, क्या मिला, इसका क्या आशय है, और प्लस हमारे वर्क की उपयोगिता क्या है, हमारे वर्क की लिमिटेशंस क्या हैं, और उसके लिए सजेशंस क्या हैं। सारे परिणामों की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आपने जो हाइपोथेसिस रेज की थी वो सिद्ध हुई अथवा सिद्ध नहीं हुई, ये चीज भी आपको देखनी होगी। और हाइपोथेसिस को नहीं तेरे पास कितने हैं, कहा 2 तक होंगे। हेलो, हाइपोथेसिस को जब आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप बायस्ड होके किसी हाइपोथेसिस को ना तो एक्सेप्ट करिए और ना तो रिजेक्ट करिए। लेट द डेटा टेल यू, आंकड़ों को बताने दीजिए कि आपकी हाइपोथेसिस सही है अथवा आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है अथवा एक्सेप्ट नहीं हो रही है। इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एटीट्यूड एंड डिजायर्स। तो कभी कभी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में गलतियां होती हैं हम लोगों से, या होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस पे हमें ध्यान करना पड़ेगा। जो भी हाइपोथेसिस आपने फॉर्म किया है वह एक्सेप्ट हो रही है कि एक्सेप्ट नहीं हो रही है। एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है तो वाजिब ढंग से हो रही है अथवा उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हेन द टास्क इज ओवर, तो 2 चीजों पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ये, उनसे जो निष्कर्ष मिल रहा है कि उसकी इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत यूज में है और बच्चे जानते होंगे मेरा ख्याल है। तो इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल्स आपने लिया प्रभाव ज्ञात करने के लिए और जो परिणाम आपको मिला उस वेरिएबल के परिणाम स्वरूप, उन दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुई कि नहीं हुई, परिकल्पना के अनुसार हुई कि नहीं हुई, ये चीज आपको तय करना पड़ेगा। और क्या जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट बाहर के लोगों के लिए, यानी आपका जो रिजल्ट है क्या उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं बाकी लोगों के लिए। जैसे हमारा रिजल्ट आया कि चिंता के कारण बच्चों में समायोजन का लेवल लो पाया गया, निम्न पाया गया। तो अब ये हमारा हो गया कि चिंता हमारा एक फैक्टर हो गया, समायोजन का डाउन होना दूसरा फैक्टर हो गया। इन दोनों में आपने रिलेशनशिप तो डिसाइड कर दी। लेकिन जब हम इस चीज को तय करेंगे कि ये जो हमारा रिजल्ट है ये क्या बाकी पॉपुलेशन पर भी कोई इंडिकेशन देता है, क्या बाकी पॉपुलेशन के बारे में भी इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो स्टडी कर लेना अच्छी बात है, लेकिन खाली कर लेने तक सीमित रहिए तो ये बेहतर नहीं, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। आपको अपने रिजल्ट में तय करना पड़ेगा कि इंटरनल वैलिडिटी आपके रिजल्ट्स की क्या है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। आपने जो प्रपोज किया क्या परिणाम उसके अनुसार है, क्या आपका परिणाम सही है, क्या कंट्रोल कंडीशन में किया गया, और बाहर के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए, अन्य रिसर्चर्स के लिए आपके परिणाम की उपयुक्तता क्या है। वेदर योर रिजल्ट कैन बी जनरलाइज फॉर अदर्स आल्सो, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है और आपको अपनी थीसिस में इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आगे चल के। प्रश्न आएंगे कि आपका जो स्टडी है वेदर इट कैन बी एनालाइज, आपने इस पर चर्चा नहीं किया है, विल यू लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट इट, इसके बारे में आपको बोलिए। अभी जो हम सुन रहे थे आप लोगों के स्पीकर्स के लेक्चर, तो उसमें एथिक्स की बात आई, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर किसी भी काम में ईमानदारी नहीं है तो वो काम 2 कौड़ी का है, बेकार है, यूजलेस है, निरर्थक है। इसलिए जब भी कोई काम आप सबमिट करते हैं रिसर्च पेपर के रूप में, थीसिस के रूप में, बुक के रूप में, तो कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये
कि प्लेगरिज्म आप चेक करके तब पेपर कहीं भेजो, तब कोई मैटर कहीं भेजो। क्योंकि अगर आप ऐसा करके नहीं भेजते हो तो आपका मैटर वापस आएगा, फिर आपकी बेइज्जती होगी, यू फील इंसल्टेड। तो ट्राई टू अवॉइड, इंश्योर कि दैट लिमिट ऑफ प्लेगरिज्म जो है, वो जो लिमिट दी गई है यूजीसी के माध्यम से या आईसीएसआर के माध्यम से या आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। 10-15% जो भी आपके यहाँ है, हमें नहीं पता है, लेकिन 10% तो मिनिमम मान के आप चलिए। आपने जिन पर काम किया, जिन पर आपने डेटा कलेक्शन किया, आप उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई से पावर का इस्तेमाल नहीं किया, कोई प्रलोभन नहीं दिया, यानी उनका पार्टिसिपेशन जो है दैट शुड बी वॉलंटरी। तीसरी बात यह है कि आप उनकी मर्जी से काम लेंगे, इसको बोलते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। आप जब भी थीसिस या पेपर आजकल लिखोगे तो आपको इन्फॉर्म कंसेंट का डिटेल देना पड़ेगा, वेदर यू स्टार्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट। जहां तक कोई चीज छुपाने की बात है, यथासंभव छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी समूह में काम करने जाओगे तो पूछेगा व्हाट फॉर यू आर गोइंग टू कंडक्ट दिस स्टडी, तो आपको बताना पड़ेगा। डू नॉट डिसीव द पार्टिसिपेंट्स, ये एथिक्स है। और आपको ये जो स्टडी आप करते हो, आपको अपने अगर अपनी पार्टिसिपेंट्स को आप उनको कन्विंस कर सको कि इट इज फॉर द गुड, it is for the well-being of the population of this society, even of your class students, आपके लिए फायदेमंद है, दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद है, तो all the participants will take keen interest in responding। क्योंकि अगर आपने फोर्सिबली उनको डाटा कलेक्शन करने किया, तो अगर आपने 100 क्वेश्चनर दिया एक क्लास में, आप यकीन रखिए 10-15 ऐसे होंगे जो इनकम्प्लीट होंगे, कुछ ऐसे होंगे बैठे होंगे उठा के आपको दे देंगे, मिस कर जाएंगे। तो बहुत सारे आइटम मिस करेंगे, बहुत सारे लोग मिस करेंगे, इसलिए उनको मोटिवेट करके काम के प्रति उनको जो है उनको काम में लाइए। अगर कोई बच्चा, कोई रिस्पोंडेंट बीच में से काम छोड़ के जानना चाहता है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है या वो काम नहीं करना या उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसकी कोई अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो यू शुड नॉट फोर्स टू स्टे हिम इन द टेस्टिंग, अलाउ हिम टू डिसकंटिन्यू। और आप एक अध्ययनकर्ता के रूप में इस बात का ध्यान रखिए कि आपका टाइम, आपका शेड्यूल, आपका जेस्चर्स एक बहुत संजीदा व्यक्ति का होना चाहिए। जब आपने बुलाया है उस टाइम पर आप पहुंच जाइए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो मीटिंग कर दी और आए बहुत देर में, तो बाकी लोग वेट करते रहे, तो ये रिसर्च में नहीं चलता, ये बहुत डिमेरिट मानी जाती है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा रिसर्च एथिक्स के रूप में, तभी हम ये कह सकते हैं कि वी हैव फॉलोड all the steps, all the ethical। अब तो देखिए क्या कर दिया है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एथिकल कमिटीज बन गई हैं, डिपार्टमेंट में भी बन गई होगी, जहां पर के लोग आपके रिसर्च को क्लियरेंस देते हैं कि आप कैसे करोगे, किन पर करोगे, क्या आपकी ऑब्लिगेशंस होंगी, क्या आपकी लायबिलिटीज होगी। ये जब तक पास नहीं होता है, यूजीसी या भेजोगे प्रोजेक्ट या कहीं भेजोगे, तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे मांगेंगे। लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको रेफरेंस के बारे में 1-2 मिनट की बात लेते हैं कि लास्ट में आपको उन रेफरेंसेस को देना पड़ेगा जिनकी स्टडीज को आपने पढ़ा है और यूज किया है। तो हम 2 तरह के पेपर आजकल देखते हैं, हम लोग पेपर भी हम लोग एडिट करते हैं या रिव्यू में आता है, तो कुछ तो रेफरेंस आती है, रेफरेंस लिस्ट आती है पेपर के लास्ट में, और कभी कभी लोग रेफरेंस के बजाय बिब्लियोग्राफी दे देते हैं। तो हम बच्चों से बताएंगे कि आप पेपर जब लिखते हो तो आप रेफरेंस की लिस्ट डालो, बिब्लियोग्राफी नहीं, इसलिए कि रेफरेंस में वही चीज आवेगी जो आपने यूज किया अपने पेपर में, और जो आपने यूज नहीं किया है आप उसे कोट ना करिए। जब वो आप अनयूज पेपर आप कोट करोगे, जिनको आपने पढ़ा है लेकिन यूज नहीं किया है आप उनको कोट करोगे, तो वो बिब्लियोग्राफी होगा। वी इनवाइट रेफरेंसेस। देयर में भी सब जैसे लिटरेचर वगैरह में होता है, वहां पर बिब्लियोग्राफी ज्यादा चलती है। तो उस बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपने उसको अपने रिसर्च में डायरेक्टली यूज किया है कि नहीं किया है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन इफ आपने उसको पढ़ा है, आपको उससे सहायता मिली है, यू हैव गॉन थ्रू इट, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। तो रेफरेंसिंग में भी ये 2 तरीके होंगे, रेफरेंस आपका अल्फाबेटिकल एपीए स्टाइल में हो, अथवा अगर बिब्लियोग्राफी है तो जो आपके यहाँ सिस्टम में चलता है वो दीजिए। विद दीज वर्ड्स हम आपको एक बार फिर कंक्लूड कर देना चाहते हैं कि रिसर्च जो है वो ज्ञान को, नॉलेज को अर्जित करने का एक सिस्टम है, एक अप्रोच है, और आपका अप्रोच जितना सॉलिड होगा,
आपको अर्जित ज्ञान भी उतना ही सॉलिड होगा, उतनी ही उसकी अधिक से अधिक उपयोगिता होगी। इसलिए रिसर्च की जो स्टेप्स हैं आप उनको क्रमशः फॉलो करिए, सिंसियरली फॉलो करिए, और ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे परिणाम मिल सकें। और परिणाम जितना अच्छा होगा आपके प्रति लोगों की रिस्पांस भी उतनी अच्छी होगी। इसलिए वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी क्यूरियस, and we should be dedicated towards the work undertaken by us. Thank you very much. Thank you very much, Professor Singh. I was just remembering. Welcome. Thank you very much, sir. Yes. I was remembering my days of research methodology classes when I was in my previous class and going to be studied by Professor L.P. Tripathi, sir. Really, Oh, sir. good. Gorakhpur. Oh, Yes, oh, yes, yes. wonderful, wonderful. It is the most wonderful lecture. Sir. And sir, from inception to conception and from conception to operationalization. Sir, you Yeah, have yeah, yeah. cleared everything. अब From अब देखो प्रोफेसर very much आराधना जी, blessed. हाँ दिस बात ये मेरे हिस्से में था इस टॉपिक में, इसलिए सर, हमने आई कंट्रोल हम पूरे डिपार्टमेंट की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं। वी आर ब्लेस्ड टू हियर योर लेक्चर। Thank you very much, and I am also obliged that you invited And I me, am just and requesting. you provided me an opportunity to share my Thank you, views sir. with you. Our Thank you. pleasure, sir. Our pleasure. हम पार्टिसिपेंट्स को केवल 10 मिनट देंगे अगर उनको सर से कुछ पूछना है। Dear participants, you get yourself ready and you want to ask anything from the resource person, you may ask, and you are strictly permitted for 10 minutes only. Otherwise, फिर हम इनको thank you करेंगे। ऐसा ही बच्चे अगर कुछ संकोच कर रहे हैं तो उनसे जरूर कह दो कि वो टांसेन मैकगुगन की किताब जरूर पढ़ लें मेथोडोलॉजी में। अरे हम लोगों ने पढ़ रखी है। हेलो। हाँ यस आपने पढ़ी होगी। ये सर हाइपोथेसिस के बारे में बताइए थोड़ा क्लियर। या थोड़ा समझ नहीं पा रहे हाइपोथेसिस देखो मतलब हिंदी बेटा, का शब्द है या अंग्रेजी का? आप किस विषय के हैं? मैं संगीत का। हैं? संगीत विषय का हूँ। संगीत। वेरी गुड यार, संगीत तो बहुत ही उपयोगी विषय है। हाँ आप जी। कल्पना कर, पुराने जमाने में आपने सीरियल देखा होगा, धारावाहिक देखा होगा, कहानियां पढ़ी होगी, है ना? हाँ जी सर। कि फला राजकुमार को आवाज ज्यादा आ रही है उस साइड में, जरा प्लीज कंट्रोल द नॉइज, कंट्रोल द नॉइज, प्लीज कंट्रोल द नॉइज। देयर इज बंद कर देता हूँ अपना नॉइज देयर, प्लीज। हाँ तो माय डियर फ्रेंड, यू बिलोंग टू संगीत, राइट? हेलो हेलो। जी सर। जी जी। आप संगीत के विद्यार्थी हैं ना? जी सर। ओके। कभी गीत वगैरह, म्यूजिक वगैरह, गजल वगैरह, कविता वगैरह सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हाँ जी सुनते हैं सर। सुनते हैं ना? जी सर। अच्छा। तो पुराने जमाने के अगर आप इतिहास में जाइए या माइथोलॉजी में जाइए तो कभी कभी राजा महाराजे के बच्चों को जब नींद नहीं आती थी तो एक गाना बहुत पॉपुलर था उस जमाने में, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी। कहते हैं कि संगीत अगर चल रही हो तो मन खुश हो जाता है, मन शांत हो जाता है और काम की प्रवृत्ति, काम की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आपने कभी कभी संगीत पर आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो है ना वो ऐठने लगते हैं, मतलब वो खुद ही डांस करने लगते हैं। तो संगीत तो बहुत उम्दा विषय है। संगीत, आप कल्पना करो कि हम दो ग्रुप पर इस पे स्टडी करेंगे। एक बच्चों को सिखाएंगे संगीत की उपस्थिति, संगीत की दशा में, दूसरे बच्चों को सिखाएंगे संगीत की अनुपस्थिति में, और दोनों को लर्निंग चेक कर लो। मेरी गारंटी है जो संगीत के दौरान बच्चे लर्न कर रहे होंगे, दे विल परफॉर्म बेटर देन दोज चिल्ड्रन हु कुड नॉट एंजॉय द संगीत। लेकिन संगीत का मतलब आज वाली संगीत नहीं, संगीत का मतलब संगीत जो कान को अच्छा लगे, दिमाग को अच्छा लगे। तो आप संगीत में भी जब स्टडी करते हैं, हेलो सर, आवाज में हमिंग आ रही है सर। हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है।
हमिंग हो रही थी, हमिंग, अब ठीक है। हाँ, देखिए संगीत में भी उसी तरह से आप चाहें तो हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अरे मैं तो चाहता हूं कि सारे सोशल साइंस वालों को साइकोलॉजी के मेथडोलॉजी को यूज करके थोड़े अपने रिसर्च को और वैज्ञानिक बनाएं। सॉरी सर, सर क्या हुआ? सर मुझे ये हाइपोथेसिस क्या है, ये खाली इस शब्द का मतलब ही समझाना, ये नहीं क्लियर हो रहा, तभी आप हाइपोथेसिस की का बात। देखो, सुनो, हाइपोथेसिस एक कल्पना है, ठीक, परिकल्पना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। जैसे आपने ये तय कर लिया कि क्या हाँ, मतलब संगीत प्रस्तुत करने पर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ेगी, मान लो कर लिया आपने, ठीक है सर, ओके, ये थैंक यू। परिकल्पना हो गई। हाँ जी, जी बिल्कुल। ठीक, यही परिकल्पना हो गई। अब आप संगीत ऑन कर दो, देखो बच्चा थिरकने लगता है कि नहीं थिरकने लगता है, दिस इज परिकल्पना। मतलब जो काम होने से पहले ही जिसको अपने मन में मान लिया जाए कि ऐसा होगा, हाइपोथेसिस। हाँ, वो थोड़ा आप सामान्य भाषा में बोल रहे हैं कि आप जो सोचते हो कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, ठीक है, हाँ जी, वही परिकल्पना है। जी, जब आप पानी को हीट से संपर्क में लाते हैं, पानी उबलता है ना, हाँ जी, अच्छी संगीत आने पर मन खुश होता है ना। जी बिल्कुल, मैं समझ चुका हूँ सर। आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेजिक सॉन्ग आने पर मन दुखी होता है ना, दिस इज परिकल्पना। Yes, anybody else? Yeah. हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। सर मैं संस्कृत विषय से हूँ सर। थोड़ा से? मुझे संस्कृत विषय है सर मेरा, संस्कृत। हाँ। हाँ सर मुझे ये न्यायाधीश के बारे में थोड़ा सा समझा दीजिएगा। कौन चीज? जो न्यायाधीश होता है, जैसे हम चयन करते हैं तो उसको कैसे सर चयन करते हैं? उस समय हम लोग, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो डॉक्टर आराधना शुक्ला मैम ने उस समय बहुत अच्छे से बताया था, सारे कॉन्सेप्ट उस समय क्लियर थे हम लोगों के। लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया सर। चलिए, समय एक ऐसा फैक्टर होता है जो हर चीज को धीरे धीरे ढक देता है, ठीक है। जी जी तो ये जो मेथडोलॉजी के कोर्स, रिसर्च के कोर्स चलते हैं, वो इसीलिए चलते हैं दिमाग फिर से तरोताजा हो जाए, राइट। जी सर, जी जी जी। आप संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, यानी सैंपल की बात कर रहे हैं, जी ठीक है, जी, यही बात कर रहे हैं ना। हाँ सर जी। तो चलिए, आप संगीत में हो, हिंदी में हो, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फार्मूला हर जगह वही काम करेगा। जी सर। आप जैसे मान लीजिए संगीत में परिकल्पना बनाना चाहते हैं कि जी, संगीत को लोग पसंद कर रहे हैं, सॉरी, संस्कृत को पसंद करने वालों की स्थिति क्या है इस समय, ठीक। जी जी तो आप एक बहुत बढ़िया स्टडी कर सकते हैं। जी 150 लोगों को लीजिए, देखिए संस्कृत के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका नजरिया क्या है, ठीक है। जी जी सर। आप ये भी उसमें कर सकते हो कि देखो गांव वाले संस्कृत में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या शहर वाले ज्यादा लेते हैं। जी, आप ये भी उसमें कर सकते हो कि देखो जो नर्सरी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत ज्यादा लाइक करते हैं, या प्राइमरी स्कूल के बच्चे संस्कृत ज्यादा लाइक करते हैं, या कॉन्वेंट के बच्चे संस्कृत ज्यादा लाइक करते हैं। जी, संस्कृत पढ़ने वालों के व्यक्तित्व में सौम्यता कैसी होती है, कम होती है, ज्यादा होती है अन्य विषयों की तुलना में। आप इस तरह से भी तो स्टडी कर सकते हो चाहो तो। जी, अगर जी आप सर, उसको इंपिरिकल बनाना चाहते हो तो जी। कुछ भी इंपिरिकल बनाया जा सकता है भाई। गेहूं है, जी, आप गेहूं की रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, आप कौन पद्धति अप्लाई कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट होती है। जी 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 सर जी। एनीथिंग, Thank you. एनीबॉडी एल्स? थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। आपने अपना हाँ, yes. बहुमूल्य समय दिया। सर और नमस्ते। विज्ञान परिवार आपको आभार व्यक्त करता है। ओह, और कभी भी आपके लिए कुछ होगा तो हम लोग दोबारा याद करेंगे। इसलिए हमारा साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। ओह, थैंक यू मैडम, इट इज आवर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।